शुक्रगुजारी के साथ, खुदा उनके धन्यवाद के साथ मैं बहन को स्वागत करना चाहूँगा। सामने आए और खुदावन यीशु के बारे में हम सबको बताएं। Church, would you welcome a woman of God? Let's welcome Sister Neetu. Would you come up and share the word of God with us? We welcome you in Jesus' name. Thank you so much, Pastor. Hallelujah. 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 आप सबके बीच आकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। I'm feeling great by coming into your midst. और मुझे लग रहा है कि अगर आपको भी अच्छा लगा तो हम परमेश्वर का जोरदार तालियों के साथ And धन्यवाद I feel that if you're feeling good too, then you must clap and praise God with me. Let me tell you, I'm really excited to be here tonight. मैं बताना चाहती हूँ कि मैं बहुत उत्तेजित हूँ, बहुत खुश हूँ आज रात यहाँ आकर। और हमारी कलीसिया की ओर से, MTM मिनिस्ट्रीज की ओर से आप सबके लिए एक हार्दिक प्यार भरा सलाम है जी, और जय प्रभु यीशु मसीह की है जो कि मोहाली की कलीसिया ने आपके लिए भेजी है। The church in Mohali sends you their greetings. MTM Ministry sends you their meetings, their heartfelt praise the Lord in Jesus. और मैं खास तौर पर धन्यवाद देना चाहूंगी पासवान का, पास्टर जितेंद्र का और उनकी फैमिली का, जिन्होंने मुझे बहुत प्यार से रखा। पिछले कुछ समय से मैं उनके साथ हूं और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आई डिड नॉट इवन फील कि मैं एक बार भी शायद घर से बाहर हूं। I especially want to thank Pastor Jatinder and his family. They've kept me like their own in their house for a while. I've been with them since I've come here, and I feel like I'm with my family. I don't feel like I'm in a foreign place. Hallelujah. Hallelujah. और मैं पास आपका खास तौर पर धन्यवाद देना I want to चाहूंगी। especially thank Pastor Ji. आज इससे पहले कि मैं आपको परमेश्वर के वचन के बारे में बताऊं, मैं आपसे कुछ शेयर करना चाहती हूं कि हम परमेश्वर में कैसे आए। Before I share with you the word of God, I want to tell you a little bit of our testimony, how we came to know Jesus. हम हिंदू परिवार से आते हैं, मेरे हस्बैंड और मैं हिंदू परिवार से हैं, और हमें काफी साल हमने वही सब कुछ किया जो कि एक हिंदू परिवार में सिखाया जाता है। My husband and I come from a Hindu family, and for many years of our lives we did exactly what Hindu people do. हमें सिखाया जाता था कि मंडे को एक देवी देवता की पूजा करनी है, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। तो हम हर एक दिन में एक गॉड्स एंड गॉडेसेस की आराधना किया करते थे। You know, we've been taught that as Hindus that on Monday you worship a certain deity, a god or goddess, and then Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday have their own deities and gods, and that's what we used to do, worship each deity or god on a different day. और क्योंकि हमें ये कहा जाता था कि ये फलाना देवी देवता, बिकॉज आप जानते होंगे कि इंडिया में 33 करोड़ देवी देवते हैं। And we were told to think about a certain deity, a certain god, because you know there are 33 million gods in India. और जब कहा जाता था कि मंडे को ये सबसे बड़े हैं, ट्यूसडे को ये, और फिर ऐसे वीक के बाकी दिनों में भी हर किसी को हम लोग एक उच्च दर्जा दिया करते थे। And so we were taught that Monday belongs to this god and you must lift them up on Monday, and Tuesday belongs to another and you must lift them up, and that's how we were taught. और क्योंकि ये सब कुछ इतने साल चलता रहा, तो I was so confused in my mind because I was so called very religious person. And this happened for many years, और मेरे मन में उलझन आ गया क्योंकि मैं बहुत सालों से धर्म में लगातार ऐसे ही कर रही थी। और मैं ये सोचती थी कि शायद एक ऐसा भगवान होना चाहिए या देवी देवता होना चाहिए जिसके पास जाएं तो बाकी सब लोग भी खुश हो जाएं। You know, and I used to always hope that there's one such God that if you go to that one God, all the other gods are pleased. You don't have to go to everyone individually. लेकिन ऐसा नहीं होता था, क्योंकि हमें सिखाया कुछ और गया था और होता कुछ और था। चाहते हम कुछ और थे, पाना कुछ और चाहते थे। But nothing like that would happen because our desire was not the same as our teaching. We would want one thing, but we were taught something else. Hallelujah. Hallelujah. आप सोच सकते हैं कैसा सा आलम होगा। You can imagine what kind of an environment that is. लेकिन बात वहीं खत्म नहीं हुई। मेरे हस्बैंड और मेरी शादी को जब 6 महीने हो चुके थे, तब तक भी हम सब कुछ यही कर रहे थे जो मैं आपको बता रही हूँ। But the story did not end there. 6 months after our marriage, my husband and I kept on doing the same things that I just described to you. But that is where there was a twist in the tale. लेकिन वहां पर कहानी में ट्विस्ट आई। अब ऐसा हुआ कि मेरे हस्बैंड और मेरी अच्छी खासी चलती हुई गृहस्थी में कुछ ऐसी बात हो गई जो कि हमारी सोचने से, हमारे समझने से बहुत परे थी। This great marriage life that we were living, something unexpected, something that we couldn't even imagine happened. और मेरे हस्बैंड ने अचानक से शराब पीना शुरू कर दिया। And my husband all of a sudden took to alcohol. He became a drunk. और धीरे धीरे उनकी आदत बढ़ती चली गई कि वो दिन और रात सिर्फ शराब ही पिया करते थे। And slowly that
habit kept increasing and he would be addicted to alcohol from morning to evening. That's what he would do. और जितना मैं उनको रोका करती थी वो उतना ही ज्यादा पीते थे और उसमें इतने ज्यादा वायलेंट हो जाया करते थे कि मुझे समझ नहीं आती थी कि मैं क्या करूं. And the more I would try to stop my husband, the more violent he would get. He would drink even more and mistreat me. I wouldn't know what to do. क्योंकि हमें ये सिखाया गया था कि हम देवी देवताओं के पास जा सकते हैं, अपनी हर जो प्रॉब्लम है उसका हल पंडितों के पास जाकर ढूंढ सकते हैं. तो मैंने सब कुछ किया जो हमें सिखाया गया And था. because we were taught that we can find a solution to all of life's problem by visiting a certain deity or a temple or going to a certain guru or baba, I tried all these things now. और क्योंकि मैं चाहती थी कि हमारी शादी वर्क करे, बिकॉज वो हमारी मर्जी के साथ हुई थी, तो मुझे ये था कि हम पेरेंट्स को ना इन्वॉल्व करें, बिकॉज माय पेरेंट्स डिड नॉट नो कि मैं इतनी मुश्किल में से निकल रही हूँ. And because we got married from a common agreement amongst us, I wanted it to work out for us. I did not want to involve our parents because मैं नहीं चाहती थी कि मेरे माँ बाप दखल अंदाजी करें, क्योंकि ये शादी की सहमति हमने खुद दी थी. और उसमें क्या हुआ कि ये सब कुछ करते करते जितनी बार मैं किसी एक जगह पर जाती थी, मुझे पंडित कहते थे कि अच्छा आप ये उपाय कर लें, ये यज्ञ कर लें, ये काम कर लें, इतने पैसे दे दें, इतने पैसे उस चीज के लिए लगेंगे. एंड दे केप्ट आस्किंग मनी फॉर मी, और मैं बार बार जितना वो कहते थे उतना ही पैसा उनको देती रही. And so to find my solution, I went to different priests, different temples, and they would say, you must do this, you must give this, you must put so much money in. And I kept doing that क्योंकि मैं चाहती थी कि मेरी शादी बचे, तो मैं ये सब करने की कोशिश में थी. तो मुझे पंजाब में, चंडीगढ़ में, हिमाचल में जितने भी पंडित और एस्ट्रोलॉजर्स जिनको आप कहेंगे, हाथ देखने वाले कहेंगे, लाल किताब विशेषज्ञ कहेंगे, यहाँ तक कि तांत्रिकों के पास भी मैं गई. And so in Chandigarh and Punjab and Himachal, I went to every known astrologer, every person who seemed to have a power to bring solutions. I went to all of them, to every temple and every shrine. और उसके बाद भी जब कोई असर नहीं हुआ तो फिर मैंने गुरुद्वारों में जाना शुरू किया. And then when all that did not work, I started going to the Sikh temple, the Gurdwara. क्योंकि बचपन से ही हमारा घर अमृतसर में दरबार साहब के पास था, तो हमें ये आस्था थी कि शायद चलिए कोई अगर देवी देवते ने हेल्प नहीं की तो कोई गुरु साहिबान तो जरूर हमारी मदद करेंगे. Because our house was right next to the Golden Temple in Amritsar. From when we were children, we felt that we have that faith. If these gods and goddesses and tantrics and babas cannot help us, maybe we'll get a solution by going to the Golden Temple and receiving it from one of the gurus. और उसके बाद 40 दिन में नंगे पांव अपने ऑफिस से गुरुद्वारे में जाया करती थी. वहां पर यू नेम अ पाठ, आप जपजी साहब का पाठ बोलें, आप जो भी नाम बोलें, उन सब पाठों को मैं बहुत रिलीजियसली वहां बैठ के किया करती थी और घंटों रोती रहती थी. And for 40 days, I would go barefooted from my office to the Golden Temple and come back in that same barefoot state. I did every part, every recitation that they told me to do because I really wanted a solution. क्योंकि मुझे अपनी जिंदगी को एक सही मायने में अच्छी हैप्पी मैरिड लाइफ चाहिए थी. Because my dream was that मेरा अच्छा वैवाहिक जीवन हो. हालेलुया. Hallelujah. और मुझे लगता है कि हम में से कोई भी ऐसा नहीं होगा जो अपनी मैरिज को वर्क नहीं करवाना चाहता. And I think there's nobody here tonight who would not want their marriage to work out. हमारा मन करता है कि जब लोग हमें देखें हमारे हस्बैंड या हमारी वाइफ के साथ तो कहें हाँ जी ऐसा वैवाहिक जीवन होना चाहिए. This is what we all desire, that when people look at us with our husband or our wife, with our spouse, that they should say, yes, that's a great couple, that's a good marriage. लेकिन जब गुरुद्वारों से भी काम नहीं चला तो मैंने मस्जिदों में जाना शुरू कर And दिया. so when nothing happened in the Gurdwara, I started going to masjid, the Muslim mosques. और उसके बाद पीर पैगंबरों पे जाना शुरू कर And then I दिया. started going to Peer, which are the graves of Muslim saints. और उसके बाद उन तांत्रिकों के पास जाना शुरू कर दिया जिन्होंने ऐसे उपाय कराए जो हमें आधी रात को ग्रेवयार्ड में जाके करने पड़ते थे. And then finally we end up with tantrics who used to make us do crazy things like go to the graveyard in the middle of the night. और जिसके पास भी हम जाते थे 15 दिन में चीजें ठीक हो जाती थी, लेकिन प्रॉब्लम कहां शुरू होती थी कि 16th डे में चीजें पहले से भी ज्यादा बदतर हो जाया करती And थी. for 15 days, wherever we would go, we'd get some relief. But this is what the problem was. On the 16th day, every time the problem would get worse than it was before. मेरे हस्बैंड 4-5 दिन घर आते थे और उसके बाद ऐसे घर से गायब होते थे कि मैं सारी रात ढूंढने निकल जाती थी और मुझे पता नहीं होता था वो कहाँ है. My husband would return home after 4 or 5 days and suddenly disappear, and I wouldn't know where he was. I used to spend a whole night looking for him, trying to find him. And that was the time और वही वक्त था
जबकि मैं बैठा करती थी और मैं रोया करती थी, where I used to sit and weep. और मैं अपने उन सारे देवी देवताओं को, अपने गुरुओं को, जिन जिन को मैं जानती थी इतने सालों से, उन सब का एक एक का नाम ले लेकर पुकारा करती थी और कहा करती थी, क्या कोई जीवित परमेश्वर है? And all the deities, all the gods and goddesses, all the gurus and teachers that I knew the names of, I used to sit down and call out on the name of each one of them and say, is any one of you able to help me? Is any one of you of God? मैं पूछा करती थी कि जिनकी मैं उपासना इतने सालों से करती आ रही हूँ, बिना खाना खाए, बिना कुछ भी और काम किए, जिनके बारे में मैं सोचती हूँ, जिनका मैं मनन करती हूँ, क्या वो मेरी इस दुख की घड़ी में मेरे साथ नहीं खड़े होंगे? And this is what I would think and ask. I have been worshiping you even with fasting for so many years. I have been devoted to you for so many years. I have done all that I could as a worshipper. Will you not solve this problem of my life? और मैं चीखा करती थी और मैं कहा करती थी कि अगर आपके पास मेरी प्रॉब्लम का सलूशन नहीं है तो आप मुझे ले जाओ, यहाँ से, इस धरती से उठा लो. And I used to cry out and say, if you do not have a solution for my problem, why don't you just end my life and take me away from this earth? And that was the time when I always used to think how to end my life, and I used to carry a suicide note in my drawer. Every morning I used to look at that in my office and again put it back and tell my colleagues, if something happens to me, there is a proof what happened to me. और वो वक्त था कि मैं अपने साथ हमेशा एक खत रखती थी जो मेरे ऑफिस के ड्रॉर में था, जिसमें लिखा था कि मैं आत्महत्या करने वाली हूं. मैं अपने कलीग्स को बता रखा था कि अगर मैं मर गई या मुझे कुछ हो गया तो इस ड्रॉर में आपको इसका आंसर मिल जाएगा, क्योंकि मैं अपनी जिंदगी खत्म करना चाहती थी. और उस दरमियान हमने ऐसा भी किया. वी हैड आवर ओन चाइल्ड. जो हमारा बड़ा बेटा है वो उस समय बहुत छोटा था. ही वाज अबाउट 2.5 years, और उसकी इतनी तबीयत खराब रहा करती थी बिकॉज ही कुड नॉट, ही वाज अंडर द ट्रॉमा कि घर में चल क्या रहा है. And this is when my older son was just 2.5 years old, and he would undergo trauma because he would not understand what is going on in the house. And this went on for almost 5 years of our marriage. और 5 साल हमारी वैवाहिक जीवन में ऐसा ही होता रहा. आपको लग रहा होगा she must be a crazy woman. 5 साल क्या करना था ऐसे बंदे के साथ? And you may think कि ये तो पागल है, ये 5 साल तक, why was she still with this guy? I thought there was something more to what was happening in our lives. मुझे लगा कि हमारी जिंदगी में जो कुछ भी हो रहा है उसमें कुछ और बात है, कुछ बड़ी बात है. Hallelujah. 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 ये वो समय था जबकि मेरे हस्बैंड के बिजनेस पार्टनर ने मुझे बोला कि भाभी आप क्यों नहीं संडे सर्विस में एक चर्च में मेरे साथ चलती, बिकॉज ही वाज अ born again जट सिक. You know, that is the time when my husband's business partner said, sister, why won't you come to church with me? Because क्योंकि वो जो थे वो नया जीवन पाए हुए मसीह थे, सिख बैकग्राउंड के थे वो. Hallelujah. Hallelujah. और मैंने सोचा कि मैंने सब कुछ तो ट्राई कर लिया, एक सिर्फ चर्च रह गया. लेट मी जस्ट ट्राई दैट वन And this is आल्सो. what I thought. I've tried everything. Only the church remains. Let me go there. और जिस दिन मैं पहली आप सभी को जय मसीह की दोस्तों, मेरा नाम है रोहित कुमार. आप देख रहे हैं एक और मसीह वीडियो. दोस्तों आप सभी लोगों के बीच में लेके आ चुका हूं एक और मसीह न्यूज़. दोस्तों आपने वीडियो के पहले देखा होगा कि आज हमारे मसीह लोगों को टारगेट किया जा रहा है. आज हमारे मसीह लोगों को बर्बाद करने की कोशिश की जा रही. तरह तरह के उन पर ब्लेम लगाए जा रहे, उनको मारा जा रहा, उनको पीटा जा रहा, उनको बाहर तरफ से टारगेट किया जा रहा है कि ये लोग परमेश्वर की प्रार्थना ना कर सकें. क्योंकि मेरे प्यों, परमेश्वर ने इस बात को कहा था कि जब तुम कोई भी यानी कि मेरे नाम से कोई काम करोगे तो शैतान उस पर टांग जरूर अड़ाएगा. आज उसी प्रकार शैतान टांग अड़ा रहा है. दोस्तों शैतान आज हम लोगों को टारगेट कर रहा है. कहीं हम लोग अगर चर्च में जाते हैं तो वहाँ पर भी प्रार्थना करने पर हमें विरोधी द्वारा यानी शैतान के द्वारा और शैतान विरोधियों के द्वारा हमें परेशान करता, हमें टारगेट करता, हमें मारता है, पीटता है, परेशान करता है. लेकिन मेरे प्रियो आपको ऐसा नहीं करना है. बस आपको विश्वास रखना है, आपको श्रद्धा रखना है. वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपको हर एक मुसीबत से आज़ादी देगा, आपको हर एक प्रॉब्लम से बचाएगा और आपके जीवन की हर एक मुसीबत से छुटकारा पा करके आप हमेशा मुस्कुराते रहें. आप सभी को जय मसीह की दोस्तों, मेरा नाम है रोहित कुमार. आप देख रहे हैं मसीह का दोस्त ऑफिशियल चैनल के माध्यम से, और प्रभु के मीठे वचनों और पवित्र नामों में आपका स्वागत करता हूं. दोस्तों आप सभी लोगों के बीच में लेके आ चुका हूं एक और सामर्थ्य से भरी अंकुर
दोस्तों, मेरा नाम है रोहित कुमार। आप देख रहे हैं मसीह का दोस्त ऑफिशियल। आप सभी को जय मसीह की दोस्तों, मेरा नाम है रोहित कुमार। आप देख रहे हैं